students? Can you hear me? Okay. तो क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कोई is there any ambiguity, something which you don't understand? It was all your physics which you have done in your previous years, and don't worry, you don't have to learn all this physics. ठीक है, आपने ये सारी फिजिक्स नहीं पढ़नी है, राइट? जो मैंने आपको कल बताया, जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है which I did with you was structure of the eye. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द आई आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, और अगर आपने स्पेशल सेंसेस, it's not going to be very difficult for you. ठीक है, जी, रिड्यूस आई मैं आपको बता देती हूँ. सो जितनी भी फिजिक्स कल पढ़ाई है वो बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए ही, आगे जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको, whatever I'm going to teach you, you should know के what was the logic behind of teaching the physics which I taught you yesterday. ठीक है, okay, so we were discussing about the refractive surfaces of the eye. ठीक है, तो the eye जो है it has 4 refractive surfaces. सबसे पहले जो है the interface between the anterior surface of the cornea and the air. ठीक है, फिर posterior surface of the cornea है और aqueous humor है, फिर interface between aqueous humor and the anterior surface of the eye, then the anterior surface interface between the posterior surface of lens and the vitreous humor, यानी कि air. ठीक है, air and the interface between air and the anterior surface of the cornea. फिर यहाँ पे this area also has a refractive index, posterior surface of the cornea and the aqueous humor. फिर ठीक है, फिर aqueous humor and the anterior surface of the lens, then the posterior surface of the lens and the vitreous humor. ठीक है, ये आपके सारे different areas हैं refraction के. ठीक है, so एयर का रिफ्रैक्टिव सरफेस एरिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, एंड कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.38 है, एंड एक्वस ह्यूमर का 1.33 है, लेंस का 1.40 है और एक्वस ह्यूमर का 1.34 है. ठीक है, दीज आर, ये आपको होने चाहिए. ठीक है, रिफ्रैक्टिव सरफेसेस. रिड्यूस आई क्या है? तो ये एक टर्म यूज अ टर्म रिड्यूस आई. ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए they instead of counting all the refractive surfaces, they they say that there is a single refractive surface. ठीक है, और that single refractive surface has a refractive power of 59 diopters. ठीक है, और when does it have a refractive power of 59 diopters? When the lens is accommodated for distant vision. ठीक है, यानी कि आप दूर से देख रहे हो, ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो. ठीक है, आप 6 मीटर से बियॉन्ड, द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 6 मीटर. ठीक है, एंड यू आर लुकिंग एट दैट ऑब्जेक्ट, और उस वक्त आपके लेंस की क्या कंडीशन है? उस वक्त आपका लेंस इज टोटली इन अ रिलैक्स स्टेट, राइट? एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ योर होल आई? ठीक है, दैट टोटल रिफ्रैक्टिव पावर इज 59 डायोप्टर्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड आई. और उसमें वो कहते हैं कि इसमें हम जो सेंट्रल पॉइंट लेते हैं ना, जो जहाँ पे मैक्सिमम 59 डायोप्टर्स है, वो 17 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ रेटिना. ठीक है, यानी कि रेटिना, ये जो येलो येलो रेटिना नजर आ रही है ना, कैन यू सी दिस रेटिना, इससे 70 मिलीमीटर इसके इन फ्रंट है. ठीक है, तो दिस इज द एरिया, सपोज्ड एरिया जहाँ पे यू आर लुकिंग at a distant object. Distant object का मतलब है this object should be 6 meters away from you. ठीक है, and in that situation when you are looking at a distant object, your lens is in a totally relaxed state. ठीक है, it flatten होता है, और the lens in the it is in a relaxed state, and at that moment आपकी पूरी eye की जो refractive power है वो है 59 diopters, right? So this is called the reduced eye. यानी कि बजाय कि आप हर आपके रिफ्रैक्टिव सरफेस का आप काउंट करें रिफ्रैक्टिव पावर, इंस्टेड ऑफ दैट आपके होल आई की रिफ्रैक्टिव पावर 59 डायोप्टर्स होती है.
जब when you are looking at a distant object, ठीक है। अच्छा ओके, थोड़ा सा मैं इसको बड़े पे ले आऊं। So eye की when we are talking about the refractive surfaces of the eye, we talk about the two most important structures which have refractive ability, and they are cornea and lens, right? So cornea की कितनी है refractive power? If we only consider the refractive power of cornea, cornea की refractive power है 2/3, यानी अगर 60 diopters, let's say 59 diopters आपकी पूरी eye की है, तो 2/3 जो power है वो आपकी 40, ठीक है, almost 39 जो है वो आपकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो आपकी कॉर्निया की है। बिकॉज वाई? बिकॉज आपकी लाइट रेज एंटर हो रही है फ्रॉम वन मीडियम इनटू एन अदर मीडियम, यानी कि फ्रॉम एयर इनटू योर इट हिट्स योर कॉर्निया, ठीक है। तो जब एक डिफरेंट मीडियम से एंटर होती है तो लाइट, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव पावर जो है उस जगह की ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव पावर 59 डायोप्टर्स में जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर है उसमें 2/3 रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो आपके कॉर्निया की है, ठीक है। कॉर्निया की 2/3 रिफ्रैक्टिव पावर है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव जो कर्वेचर है इट रिमेन्स द सेम, इट डजंट चेंज। तो रिफ्रैक्टिव एबिलिटी कॉर्निया की रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। लेंस का तो कर्वेचर आप उसको छोटा भी, फ्लैट भी कर सकते हैं, उसको थिक भी कर सकते हैं, तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर कैन चेंज, लेकिन कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर कैन नॉट चेंज बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। तो दो बातें हैं कॉर्निया की कि आप उसका रिफ्रैक्टिव पावर यू कैन नॉट चेंज इट। नंबर 2, इसकी 2/3 जो रिफ्रैक्टिव पावर है आई की, उसकी 2/3 जो रिफ्रैक्टिव एबिलिटी है वो आपकी कॉर्निया में, ठीक है। अच्छा, and this is the cornea, this is the transparent part of the cornea which you can't see. अच्छा, फिर दूसरी जो आपकी important structure है which has a refractive ability is your lens. लेंस की रिफ्रैक्टिव एबिलिटी जो है ना, टोटल पावर, जो टोटल पावर है आपकी रिफ्रैक्टिव एबिलिटी आई की है, उसमें 1/3 जो एबिलिटी है वो आपके लेंस में है, ठीक है। यानी अगर लेट्स से 60 या 59 आपकी लेंथ की डायोप्टर है रिफ्रैक्टिव एबिलिटी, तो उसमें 20 जो है आपकी वो क्या कंसिडर करते हैं कि लेंस की रिफ्रैक्टिव एबिलिटी, राइट। सो और अच्छा, दूसरी बात एक तो ये है कि 1/3 रिफ्रैक्टिव एबिलिटी लाइज इन योर लेंस, एंड अदर थिंग इज दैट कि लेंस का कर्वेचर यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। लेंस के कर्वेचर को आइदर यू कैन इंक्रीज और यू कैन डिक्रीज। कॉर्निया के कर्वेचर को यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। लेकिन लेंस के कर्वेचर को यू कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। और इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस और द आई कैन बी इंक्रीज वॉलंटरली फ्रॉम 20 डायोप्टर्स टू 34 डायोप्टर्स, ठीक है, which is an accommodation of 14 diopters, यानी कि आपकी लेट्स से एडल्ट की तो 20 डायोप्टर है लेट्स से लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन रिफ्रैक्टिव एबिलिटी, लेकिन बच्चों में की भी 20 है, लेकिन जब आप बच्चे दे यूज द मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन, तो दे कैन इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव एबिलिटी ऑफ देयर लेंस टू 34, ठीक है। They can increase their refractive ability from 20 to 34, यानी कि accommodation हो रही है 14 diopters की, which I will discuss with you in detail कि what is accommodation, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैंने दिखाया कि this is a source of light, ठीक है, this is source of light, और यहाँ से rays they are being emitted in all directions, and by the time they reach the cornea, तो ये देखो यहाँ पे कॉर्निया इज कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे एंगुलेशन हुई, रिफ्रैक्शन हुई, फिर इस एरिया पे आके रिफ्रैक्शन हुई, फिर इस एरिया पे आके रिफ्रैक्शन हुई, एंड देन ऑल द लाइट रेज दे आर फोकस्ड ऑन वन पॉइंट इन द रेटिना। टू हैव अ क्लियर विजन, दिस इज इम्पोर्टेंट के the focus should be only one point of retina, right? अगर एक लाइट रे इधर जा रही है और एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो you will get a blurred vision. So important बात ये है कि सारी light rays को they should converge on one point, ठीक है। So that's how you will get an image. Okay,
फोकस जो है, फोकल पॉइंट शुड फॉल ऑन द रेटिना। अच्छा, अब आप ये देखो कि जब light rays are coming from a far object more than 6 meters, ठीक है, तो by the time they reach the eye they become parallel, ठीक है, they become parallel in nature, ठीक है। तो ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है इनको फोकस करना जो है आसान होता है, ठीक है। पैरेलल रेज ऑफ लाइट को आपको फोकस करना आसान होता है। तो ये जो आपका लेंस जो रिलैक्स कंडीशन में पड़ा हुआ है, रिलैक्स कंडीशन होती है, स्टेट होती है फ्लैट स्टेट, ये फ्लैट स्टेट में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि दिस लेंस विल कन्वर्ज दिस लाइट which are parallel, ठीक है, and they will focus it onto the retina on one focal point, right? अगर इसी आई को आप उठा के जरा नजदीक ले आओ इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, लेस देन 6 मिलीमीटर्स, लेट्स से यहाँ पे आप ले आओ, हाँ, तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अब यहाँ पे रेज का क्या स्टेटस है, रेज आर डाइवर्जिंग, ठीक है ना, रेज जो है वो डाइवर्ज कर रही हैं, रेज जो है वो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डाइवर्जिंग। अब डाइवर्जिंग रेज को टू कन्वर्ज देम देन द लेंस हैव टू डू मोर वर्क, ठीक है, डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ज करने के लिए लेंस को ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट, एंड टू ब्रिंग इट ऑन अ फोकल पॉइंट ऑन द रेटिना, ठीक है। अभी मैं आपको एक और डायग्राम समझाती हूँ। ये देखो, ये जो है आपका दूर से लाइट आ रही, डिस्टेंट सोर्स से आ रही, दूर से आ रही लाइट, तो लाइट के रेज जो है वो पैरेलल है, ठीक है। इन पैरेलल रेज को आपके लेंस ने कन्वर्ज किया ऑन अ फोकल पॉइंट। ये जो पूरी लाइन जो ड्रॉ हो रही है, दिस होल लाइन इज रेटिना, दिस होल लाइन समझो कि दिस इज रेटिना। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, लेंस आपका रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, तो इस रिलैक्स स्टेट में लेंस ने कन्वर्ज किया इन लाइट रेज को ऑन योर रेटिना, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये जो सोर्स है ये नियर लाइट सोर्स है, यानी कि नजदीक से आपको कोई ऑब्जेक्ट नया नजदीक पड़ा हुआ है आपकी आंखों के, लेस देन 6 मीटर। इस सिचुएशन में आपकी जो ये रेज आ रही हैं वो डाइवर्जिंग रेज है, ठीक है। जब आपके नजदीक पड़ा होगा कोई ऑब्जेक्ट तो रेज उसमें से जो एमिट हो रही हैं वो डाइवर्जेंट रेज है, ठीक है। अब इन डाइवर्जेंट रेज को ये लेंस जो है अपने उसी रेस्टिंग पोजीशन में है लेंस आपका, इट विल कन्वर्ज दीज डाइवर्जेंट रेज, बट व्हाट विल हैपन नाउ कि जो इमेज है वो अब फॉल करेगा बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, क्योंकि डाइवर्जेंट रेज हैं तो ये कन्वर्ज तो कर रहा है, लेकिन अब जो फोकल पॉइंट है दैट इज फॉलिंग बिहाइंड द रेटिना। अब बिहाइंड द रेटिना फोकल पॉइंट है तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू सी। अब क्या है कि अब इस नियर लाइट सोर्स को अगर कोई चीज नजदीक पड़ी है तो आपने इसको कैसे देखना है, ये तो नहीं हो सकता है कोई चीज 6 मीटर से नजदीक है तो यू कैन नॉट सी इट, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नाउ कि अब आपका ये जो लेंस है, अगर यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग लेंस लगा दो, अगर आप ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेंस लगा दो, यानी कि देखो उसका कर्वेचर आपने इसका ज्यादा कर दिया है, इन दैट सिचुएशन आप अगर स्ट्रॉन्ग लेंस लगाओगे तो the light rays they will converge on the retina, ठीक है, on this focal point, on this line, particular line, ठीक है, supposed line। समझ में आ गई बात कि अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, ये बहुत ध्यान से सुन लो बिकॉज आगे सारी जो फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी वो इसी पर डिपेंड करती है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है उसको कन्वर्ज करना आसान है, तो ये फ्लैट लेंस भी उसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर देगा। अगर नियर लाइट से सोर्स से लाइट आ रही है तो वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट को कन्वर्ज करने में थोड़ा सा लेंस को जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन लेंस क्योंकि अपनी फ्लैट स्टेट में है तो वो कन्वर्ज तो करेगा, लेकिन अब फोकल पॉइंट बिहाइंड द रेटिना फॉल हो रहा है। यहाँ पे देखो फिर इसको, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, नजदीक की चीजें आपने कैसे देखनी है। तो नजदीक की चीजें देखने के लिए जो डाइवर्जेंट रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ज करने के लिए आपको यू विल बी नीडिंग अ मोर पावरफुल लेंस, more powerful lens which has more refractive ability, ठीक है। सो एंड इट शुड बी मोर कॉन्वेक्स, ठीक है। अब आप देख लो कि यहाँ पे ये फ्लैट है और यहाँ पे लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो गया, तो इसकी
ability to converge rays has increased and क्या हुआ है कि आपका नियर लाइट सोर्स से भी जो आपका इमेज है इट इज फॉलिंग ऑन योर रेटिना. ठीक है, आगे समझ में बात. So both parallel rays and diverging rays can be focused at the same distance beyond a lens provided the lens changes its convexity. ठीक है, यानी कि parallel rays भी and as well as divergent rays भी, both of them they can be brought to focus on one point. ठीक है, on one point provided you change the refractive ability of the lens. ठीक है, अच्छा. अच्छा, अब नाउ व्हाट इज अकोमोडेशन. बहुत ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके ऊपर बहुत सवाल होते हैं एमसीक्यूज में भी, एससीक्यूज में भी और वाइवा में. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है. राइट, सो व्हाट इज अकोमोडेशन. एक तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए. द एबिलिटी टू एडजस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, इज नोन एज accommodation. What accommodation is actually, it increases the strength of the lens for near vision. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि accommodation increases the strength of the lens for near vision. यानी कि डिस्टेंट तो चीजें आप आराम से देख रहे हो. ठीक है, आपका लेंस जो है वो रिलैक्स स्टेट में है और आप देख रहे हो आराम से. लेकिन अगर वही चीज चलते चलते आपके वो नजदीक आ जाती है, जैसे ये चीज दूर है तो आपको नजर दूसरी, लेकिन वही चीज अब आपके नजदीक आ गई है, तो क्या होगा कि आपका जो आपका जो लेंथ है, जो आपका लेंस है, वो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी टू सी द ऑब्जेक्ट्स फॉर इन द नियर विजन. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपके नियर विजन में आएगा तो आपकी लेंस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन. अकोमोडेट करता है आपका लेंस. स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स शेप. ठीक है, अब लेंस की स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है? शेप पर. जितना ज्यादा कॉन्वेक्स होगा लेंस उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी. ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी एबिलिटी होगी टू कन्वर्ज द लाइट रेज. ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी एबिलिटी है टू converge the light rays, and this ability of the lens to change its shape and to increase its strength is regulated. ठीक है, this is regulated, it is under autonomic control and very importantly parasympathetic control है इसका. ठीक है, very important सब बात ये है कि sympathetic का इतना रोल नहीं है, रेगुलेशन है, यानी रेगुलेट हो रही है. रेगुलेट का क्या मतलब है कि when you require it तो वो उसको इंक्रीज कर देगी, when you don't require it तो लेंस की शेप जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. राइट, सो इट इज स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स शेप एंड द शेप का जो है दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी कौन सा पार्ट ऑटोनॉमिक का? पैरासिम्पैथेटिक. ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है. तो पैरासिम्पैथेटिक का इतना रोल नहीं है अकोमोडेशन में जितना पैरासिम्पैथेटिक का है. Now the structures which are involved in accommodation. आई के कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस अकोमोडेशन में? आपके सिलियरी मसल है. ठीक है, ये आपका सिलियरी मसल है. ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन ये है, सिलियरी मसल है. और इस क्रॉस सेक्शन को और उसको और काटा हुआ है तो ये देखो ये आपका सारा सिलियरी मसल है. ठीक है, सिलियरी मसल के साथ आप ये देखो सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगी हुई हैं और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये लेंस है आपका. दिस इज योर लेंस. ठीक है, और ये आपका वो सिलियरी मसल है, ये सिलियरी मसल है आपका. ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दिस सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये आपके लेंस के साथ अटैच्ड है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो. ये आपका लेंस है. लेंस जो है सिलियरी बॉडी के साथ, सिलियरी मसल्स के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस सस्पेंसरी लिगामेंट्स. ठीक है, अच्छा, ये आपके गाइटिंग का डायग्राम है. ये आपका कॉर्निया है. ये आपकी ये कोराइड प्लेक्सस है. कोराइड प्लेक्सस की आगे कंटिन्यूएशन है ये आपकी सिलियरी बॉडी है. ठीक है, और
ये आपकी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दी सस्पेंसरी लिगामेंट से के साथ लेंस के को, ठीक है। तो जब सिलरी बॉडी का मसल कंट्रैक्ट या रिलैक्स होगा तो वो आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट्स को कंट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा एंड दैट विल चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। अच्छा, एक और डायग्राम ये भी बहुत अच्छा से दिखाया समझाने के लिए। समझो ये बीच में लेंस है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है और ये सिलियरी मसल्स है। यानी कि सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे तो इट विल अफेक्ट द सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड दैट विल अफेक्ट द कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। सो जब सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, जब ये सिलियरी मसल जो है कंट्रैक्ट करेंगे तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो स्लैकन हो जाएंगे, ठीक है। दे विल रिलैक्स एंड दे विल increase the diameter of the lens. Lens will become spherical, ठीक है। राइट, सो ये आप अब याद रखना कि जब ये सिलेरी मसल्स जो सिलेरी बॉडी में हैं when they will contract, ठीक है, तो ये जो आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये रिलैक्स कर जाएंगी। when they will relax the diameter of the lens will increase. Lens जो है become instead of being flat it will become spherical. जितना ज्यादा spherical होगा उतनी इसकी डायोप्टर्स यानी कि पावर अकोमोडेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि जब ये सिलेरी बॉडी के जो मसल हैं ये आपके कंट्रैक्ट करेंगे तो these ligaments they will relax. When these ligaments will relax, this lens will become more spherical in shape. अब ये flatten है ना, it will become more spherical in shape. मैं आगे डायग्राम आपको और भी दिखाती हूँ, ठीक है। और जब ये रिलैक्स करेगा, ये देखो, जब ये सिलेरी मसल रिलैक्स करेगा तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये टॉट हो जाएंगी, ठीक है। ये टॉट हो जाएंगी तो जब ये टॉट होंगी तो ये लेंस को खींच के फ्लैट कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे मसल रिलैक्स होगा तो ये जो है आपकी लिगामेंट्स हैं ये टॉट हो जाएंगी और वो लेंस को खींच के फ्लैट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब लेंस में क्या है, इन अ यंग पर्सन द लेंस इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कैप्सूल व्हिच इज फिल्ड विद विस्कस प्रोटीनेशियस बट ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ठीक है। सो आपका लेंस कैसा बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कैप्सूल व्हिच इज फिल्ड विद विस्कस, sorry, not viscous, viscous proteinaceous fluid which is transparent in nature, ठीक है। So when the lens is in a relaxed state, it assumes an almost spherical shape. So जब लेंस रिलैक्स होता है और लेंस के साथ लेंस के लिगामेंट्स भी रिलैक्स होती हैं तो ये पूरा गोला बॉल की तरह हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये देखो आपको मैं दिखा देती हूँ, एक और बड़ा अच्छा डायग्राम मैंने कहीं से देखा था, ये देखो। अच्छा, ये देखो, ये जो है लेंस अभी आपका फ्लैट है, ठीक है। ये लेंस जो है आपका फ्लैट है, ठीक है, रिलैक्स स्टेट में है। और यहाँ पे देखो लेंस जो है इट हैज बिकम सेफेरिकल, मोर सेफेरिकल, ठीक है। इतना ज्यादा सेफेरिकल होगा तो उसकी रिफ्लेक्टिव पावर हैज इंक्रीज्ड, राइट। अब इसमें सिचुएशन देखो कि ये जो सिलरी मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, ठीक है। ये रेड कलर के ये आपके सिलरी मसल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं। सिलरी मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जो फाइबर्स थी ये रिलैक्स हो गई हैं, ठीक है। रिलैक्स हो गई तो ये देखो इलोंगेट हो गई, ये रिलैक्स हो गई, ठीक है। और आपका सिलरी मसल जो है वो ये आपका स्टेटस आ गया आपके, तो ये डायग्राम उल्टा बनाया हुआ वैसे। यहाँ पे जो है सिलरी मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जो कंट्रैक्ट कर रहा है तो उन्होंने मोटा दिखा दिया है, उसको थिक दिखा दिया है, ठीक है। सिलरी मसल जो है यहाँ पे कंट्रैक्ट कर रहा है तो ये देखो यहाँ की फाइबर्स रिलैक्स हो गई हैं और फाइबर्स रिलैक्स हो गई हैं तो ये जो लेंस है वो ज्यादा आपका थिक हो गया, ठीक है।
The process by which the curvature of the lens is increased is called accommodation. ये एक और definition है. The process by which the curvature of the lens is increased is called accommodation. ठीक है? अच्छा. यहाँ पे एक और डायग्राम है. ये देखो, यहाँ पे ये फ्लैट है, ये वीक लेंस है, और यहाँ पे ये ज्यादा राउंड हो गया है, तो दिस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर. ठीक है? यहाँ पे ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं. ठीक है? सिलरी बॉडी के मसल्स में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या हो रहा है कि सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सिलरी मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जो फाइबर्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये आपकी रिलैक्स हो रही हैं, स्लैकन हो रही हैं. जब वो रिलैक्स कर रही हैं तो आपका लेंस जो है बिकम्स मोर स्फेरिकल इन शेप, और वाइसी वर्सा. इससे यहाँ पे सिंपैथेटिक लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा बुक्स में ये लिखा कि सिंपैथेटिक का कोई रोल नहीं है. ठीक है? जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होगी तो सिलरी मसल कंट्रैक्ट नहीं करेंगे. ये जो फाइबर्स हैं टॉट रहेंगी और ये खींच के रखेंगे आपके लेंस को ना फ्लैट शेप. ठीक है? ये शेप हर वक्त रहेगी. ठीक है? लेंस आपकी फ्लैट शेप में रहेगा इफ यू आर लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है? नॉर्मली आप देख रहे हो, दूर ही देख रहे होते हैं. नजदीक तो आपको किताब में पढ़ना होता है तो आप देखते हो, या किसी ऑब्जेक्ट को नजदीक से देखना हो तो नॉर्मली जो आपका लेंस जो है वो आपकी रिलैक्स स्टेट में होता है. ठीक है? लेकिन आप जब कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखोगे तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन शुरू हो जाएगी और आपका लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो उसकी रिफ्लेक्टिव पावर इंक्रीज हो जाएगी. अब देखते हैं आगे होता क्या है कहानी. तो जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अकोमोडेशन, तो आप अकोमोडेशन की डेफिनेशन बताओगे. फिर आप लिखोगे कि व्हेन, अब बुक में ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ है. तो व्हेन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द आई, ठीक है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो आपकी आंख के नजदीक आएगा, द नंबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक इंपल्सेस स्टिमुलेटिंग द सिलरी मसल्स इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फॉर द आई टू कीप द ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली इन फोकस. अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट है वो 6 मीटर से बियॉन्ड पड़ा हुआ है. अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो चलता चलता चलता, जैसे एक बंदा है, वो आप दूर है, आप उसको देख रहे हो, यू कैन सी इट क्लियरली. अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे जैसे चलता चलता आपके नजदीक आएगा 6 मिलीमीटर, तो जैसे जैसे वो नजदीक आता जाएगा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, ताकि आपका लेंस जो है वो मोर स्फेरिकल होता जाए, ताकि उस ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देखते रहो. ठीक है? स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है ना कंट्रैक्ट बोथ सेट्स ऑफ सिलरी मसल फाइबर्स. बोथ सेट्स है, मेडियोनल है और सर्कुलर फाइबर्स है. दोनों सेट्स को वो स्टिमुलेट करता है जो कि लेंस लिगामेंट्स को रिलैक्स करेंगे. जैसे लेंस लिगामेंट्स रिलैक्स करेंगी, लेंस बिकम मोर थिकर, and when the lens becomes more thicker it will increase its refractive power, and refractive power increase हो जाएगी तो इमेज जो है वो रेटिना के पीछे पड़ने के बजाय it will fall in front on the retina. ठीक है? and जिससे कि role of sympathetic fibers is insignificant in accommodation. आगे बात समझ में? ये जो मैंने इतनी कहानी भी पहले बताई थी वो यही थी. इतना जो मैंने इस डायग्राम पे एम्फेसिस फेस पुट किया था वो यही किया था कि दूर से जो लाइट रेज आ रही हैं एक ऑब्जेक्ट से, अगर एक बंदा दूर खड़ा हुआ है और वहां से जो लाइट रेज आ रही हैं वो दूर से आ रही हैं, तो जब वो आए के नजदीक पहुंचती हैं तो स्ट्रेट हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं. पैरेलल रेज को कन्वर्ट करना आसान होता है. तो एक फ्लैट लेंस जो नॉर्मल कंडीशन में होता है वो उनको कन्वर्ट करता है एंड द इमेज फॉल्स ऑन द रेटिना, फोकल पॉइंट यहाँ पे. अगर वही नियर ऑब्जेक्ट जो है वही नियर ऑब्जेक्ट जो है अब वो वही ऑब्जेक्ट जो है वो आपके नजदीक आ गया है, तो अब उसमें से जो लाइट एमिट हो रही है वो डाइवर्जेंट रेज है. तो अब क्या करेगा आपका लेंस जो है, आपकी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, सिलरी मसल कंट्रैक्ट करेगा, और आपका सिलरी मसल के कंट्रैक्ट करने से क्या होगा कि आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो अटैच हैं आपके लेंस के साथ वो स्लैक करेंगी एंड द लेंस विल बिकम मोर स्फेरिकल इन शेप. जब लेंस ज्यादा स्फेरिकल इन शेप हो जाएगा तो उसकी रिफ्लेक्टिव एबिलिटी विल इंक्रीज, पावर ऑफ अकोमोडेशन विल इंक्रीज, एंड व्हाट विल हैपन, यू विल बी एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट as clearly as you were seeing the distant object. ठीक है?
सिर्फ चेंज यहाँ पे क्या आई है कि आपने पावर ऑफ लेंस जो है इंक्रीज कर दी है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इंक्रीज हुई है ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लिगामेंट्स एंड द लेंस बिकम मोर स्फेरिकल इन शेप। आगे समझ में बात, आगे चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये। अच्छा, अब एक टर्म यूज होती है इमेट्रोपिया, ठीक है। इमेट्रोपिया का मीन्स है, इट मीन्स नॉर्मल विजन, ठीक है। आई इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल और इमेट्रोपिक इफ parallel light rays from a distant objects are in sharp focus on the retina when the ciliary muscle is completely relaxed, ठीक है। ciliary muscle जो है relaxed है, यानी कि ये सिनेरियो है कि सिलियरी मसल जो है वो आपका रिलैक्स्ड है, ठीक है, रिलैक्स है। ये जो है आपके टॉट हैं लिगामेंट्स, और लेंस जो है वो फ्लैट शेप में है, लेंस जो है फ्लैट शेप में है, ठीक है। एंड यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज इन अ फार डिस्टेंस, ठीक है। ऐसी आई को हम कहेंगे इमेट्रोपिक आई या नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन में क्या है, सिलियरी मसल आपका रिलैक्स्ड है, लेंस इज फ्लैट इन शेप and you are able to see a distant object very clearly. This is called ametropic eye, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, so the eye is said to be normal or ametropic if parallel light rays कहाँ से आ रही है, distant objects से आ रही है, ठीक है। They are in sharp focus on the retina when the ciliary muscle are totally relaxed and lens is in a flat shape, ठीक है। So ametropic eye can see all the distant objects very clearly, ठीक है। अच्छा, now rays from objects closer than 6 meter from the observer are brought to a focus behind the retina. वही कहानी, subsequently the objects appear blurred. अब एक आई है, वही आई है इमेट्रोपिक, नॉर्मल आपकी आई है, ठीक है। और अब वो जो ऑब्जेक्ट था वो आपके नजदीक आ गया है, 6 मीटर से कम नजदीक आ गया है, तो क्या होगा कि रिलैक्स स्टेट में जबकि लेंस आपका फ्लैट है तो आपका विजन ब्लर हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, ठीक है। वही ऑब्जेक्ट जो आपको डिस्टेंट दूर से नजर आ रहा था, जैसे ही वो नजदीक आया आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब क्या है, वो डाइवर्जेंट रेस की वजह से वो रेटिना के पीछे इमेज फॉल कर रहा है। तो अब क्या होगा कि उसको आपको कैसे फोकस करेंगे, हाँ कैसे फोकस करेंगे। अब या तो ये है कि आपका इमेज, ये आपका रेटिना है, ठीक है, इमेज शुड फॉल ऑन द रेटिना, रेटिना पे तो फॉल ही नहीं कर रहा, रेटिना के पीछे जा रहा है, ठीक है। तो या तो आप लेंस, या तो आप ये करो कि रेटिना को खींच के पीछे ले आओ यहाँ पे, तो आपको नजर आएगा, ठीक है। अब लेंस को तो आप सॉरी रेटिना को तो आप खींच के पीछे नहीं ला सकते, ला सकते हो, नहीं ला सकते। रेटिना को तो आप यहाँ से खींच के यहाँ नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो दूसरी क्या बात क्या कर सकते हैं, आप लेंस की पावर ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, बाय मेकिंग इट मोर कन्वेक्स, बाय मेकिंग चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो आप यू विल एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो जो बोनी फिश होती है ना, वो क्या करती है, बोनी फिश जो है ना वो अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर लेती है। बोनी फिश जो है, प्रसर भाग जाता है, बोनी फिश जो है ना वो अपने रेटिना को खींच के पीछे ले जाती है, लेकिन ये आपके अंदर ऐसे नहीं होता। आप क्या करते हो, आप अपने लेंस का, you make your lens more spherical in shape, ठीक है, and increases the refractive ability of the lens, तो आपका नियर ऑब्जेक्ट भी जो है वो फॉल करता है रेटिना के ऊपर, राइट। सो ये थी आपकी सिचुएशन इमेट्रोपिया, बात समझ में आ गई। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपने देखा जब लेंस आपका फ्लैट था, जब वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपके नजदीक आना शुरू हो गया, लेस देन 6 मिलीमीटर हुआ, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हुई, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट किया,
और आपका लेंस जो है लिगामेंट्स रिलैक्स किए, लेंस मोर स्फेरिकल हो गया और आपका लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो गई और आपने डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट नजदीक आया था आपने उसको क्लियरली देखा, ठीक है। आप कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक बंदा दूर से चला आ रहा है वो आप उसको देख रहे हो जब वो आप नजदीक आता है तो ब्लर हो जाता है, ऐसे कभी हुआ है? ठीक है, योर फ्रेंड इज कमिंग, आप उसको दूर से देख रहे हो, मेरा फ्रेंड आ रहा है आ रहा है आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो नजदीक आया वो ब्लर हो गया? नो, ब्लर नहीं होता, बिकॉज उसी वक्त आपके साइमल्टेनियसली जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है आपकी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज होती जाती है और आपका लेंस जो है वो बिकम स्फेरिकल और वो इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इमेट्रोपिया। अब हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स उनको कहते हैं, एक है कंडीशन हाइपरोपिया और एक कंडीशन है मायोपिया, ठीक है। अब ये देखो कि हाइपरोपिया, अच्छा ये देखो पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज का मतलब है कि दूर से आ रही है आपकी लाइट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लाइट जो है, लाइट रेज जो है पैरेलल है, ठीक है, यानी कि दूर से आपकी ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब पैरेलल रेज तो आ रही है लेकिन आपका इमेज जो है इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द रेटिना। देखो इमेट्रोपिया में तो आपका इमेज जो दूर से आ रहा है ना, आपकी लाइट वो आपकी फॉल करी रेटिना के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है आपका वो आपकी लाइट जो है फॉल करी बिहाइंड द रेटिना। आपकी लाइट जो है वो फॉल कर रही है बिहाइंड द रेटिना। अभी आप देखो थोड़ा सा फर्क देखो कि यहाँ पे जो आपके जो आई बॉल का साइज है और इस आई बॉल का साइज, ये आई बॉल का साइज आपका छोटा हो गया है, ठीक है। जब आपकी लाइट रेज जो है वे दे फॉल बिहाइंड द रेटिना, यू कॉल इट द कंडीशन इज हाइपरोपिया, ठीक है। जब बिहाइंड द रेटिना फॉल करेंगी लाइट रेज तो यू विल कॉल द कंडीशन हाइपरोपिया, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं वो दे आर फॉलिंग बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, दे आर नॉट फॉलिंग ऑन द रेटिना एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरोपिया। अब ये कंडीशन कब होती है कि या तो ये आई बॉल जो है बहुत छोटा इन साइज है, ठीक है, स्मॉल इन साइज है तो आपका पीछे पड़ रही है, रेटिना के पीछे जा रही है, लाइट फोकस हो रही है, या आपका लेंस वीक है, ठीक है। फ्लैट स्टेट में भी आपका जो लेंस यहाँ पड़ा हुआ है वो लेंस वीक है, ठीक है। तो आप वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है और आपकी लाइट ऑफ जो वेव्स सॉरी जो आपकी लाइट रेज है वो फोकस हो रही है बिहाइंड द रेटिना। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरोपिया। अब याद रखो, फिर से मैं बता रही हूँ, लाइट पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, वो फॉल कर रही हैं आपके बिहाइंड द रेटिना। उसकी वजह एक तो ये है कि या तो आई बॉल बहुत छोटा है, ठीक है, या आपका लेंस वीक है। दोनों सिचुएशन में कन्वर्जेंस जो है वो रेटिना के पीछे हो रही है, ठीक है। तो आप अब क्या होगा कि अच्छा अब क्या होगा कि आपके सो हाइपरोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस, ठीक है, हाइपरोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस, ठीक है। It is due to either the eyeball is too short or the lens system is too weak, ठीक है। Parallel light rays, they are not bent sufficiently by the relaxed lens system to come to focus by the time they reach the retina, ठीक है। Focal point or the image, it is falling behind the retina. To overcome this abnormality, the ciliary muscle must contract to increase the strength of the lens, ठीक है, right? अब क्या है, अब इस सिनेरियो में क्या है कि आपका इमेज पीछे पड़ रहा है, तो या तो आप रेटिना को खींच के पीछे ले जाओ, वही बात पर आ गई, या तो आप रेटिना को खींच के पीछे ले जाओ तो यू विल बी एबल टू सी, ठीक है, लेकिन ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो। आप क्या करोगे, अपने लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर को इंक्रीज करोगे विद द हेल्प ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अकोमोडेशन आप अपने लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर को इंक्रीज करोगे। एंड जब अगर आपके लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा कि यू विल बी एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन हाइपरोपिया, ठीक है। तो अगर एक कंडीशन है हाइपरोपिया, आपका इमेज पीछे पड़ रहा है जाके रेटिना से, तो आपका अगर लेंस सही काम कर रहा है तो लेंस
with the help of the power of accommodation, लेंस जो है ना इस इमेज को the lens will become more spherical in shape और वो आपका image will fall on the retina. तो hyperopia को हम far sightedness इसलिए भी कहते हैं कि in hyperopia you can see distant objects if your lens is working normally. अगर लेंस सही काम कर रहा है तो although the light rays are falling behind the retina, आपकी लेंस की पावर इंक्रीज हो जाती है and you can see the object. So hyperopia को far sightedness इसलिए भी कहते हैं because you can see distant objects, because your lens is working and your lens is will control the converge the light rays and the image will fall on the retina. ठीक है, this is called hyperopia और hyperopia को far sightedness इसलिए कहते हैं कि वो जो लेंस रेटिना के पीछे इमेज फॉल कर रहा है वो लेंस spherical होके the person will be able to see distant objects. ठीक है, by using the mechanism of accommodation a far sighted person is capable of focusing distant objects on the retina. ठीक है, अच्छा अब नियर ऑब्जेक्ट्स की क्या कहानी होगी. नियर ऑब्जेक्ट्स आर फोकस बिहाइंड द रेटिना. ठीक है, इवन विद accommodation and accordingly are blurred. ठीक है, सो अब हाइपरोपिक पर्सन जो है वो दूर की चीजें तो देख लेता है क्योंकि उसका लेंस सही काम कर रहा है, लेंस जो स्फेरिकल हो गया और उसने इमेज को कंट्रोल कर लिया. लेकिन हाइपरोपिक पर्सन नजदीक की चीजें नहीं देख सकता. ठीक है, बिकॉज इस सिनेरियो में उसका लेंस जो है इट विल नॉट हेल्प. सो हाइपरोपिया वो कंडीशन है जिसमें लेंस जो आपका इमेज है फॉल करा बिहाइंड द रेटिना. ठीक है, दूर से चीजें नजर आ रही हैं वो तो ठीक है, वो कंट्रोल कर लेगा, वो आपका लेंस स्फेरिकल हो गया, उसने उसको कंट्रोल कर लिया. ठीक है, लेकिन जो नजदीक से लाइट आएगी ना वो तो इतनी ज्यादा डाइवर्जेंट होगी कि उसको नहीं कंट्रोल करेगा. तो हाइपरोपिया जो है इज कॉल्ड फार साइटेडनेस क्योंकि दूर की चीजें आपको नजर आ सकती हैं लेकिन नजदीक की चीजें नियर ऑब्जेक्ट्स आर फोकस बिहाइंड द रेटिना इवन विद accommodation एंड आर ब्लर्ड. ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट जो पीछे रेटिना के फोकस हो रहे हैं वो इवन accommodation की हेल्प से भी आपको नजर नहीं आएंगे and you will get a blurred vision. ठीक है, thus a hyperopic individual has better far vision. better far vision तो इसलिए है because उसके accommodation काम कर रही है. ठीक है, और अगर उसकी accommodation काम नहीं कर रही है तो फिर आप उसको convex lens लगाओगे. ठीक है, अच्छा such this condition far sightedness becomes worse when the person gets older because of loss of accommodative ability with the onset of presbyopia. So when presbyopia happens, क्या होता है presbyopia में? The lens become the lens which is transparent in color it becomes opaque. ठीक है, तो उसकी refractive ability जो है that decreases and the person is unable to see, unable to accommodate. ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं मायोपिया की. सो व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटेडनेस आल्सो. ठीक है, अब नियर साइटेडनेस में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे आर बीइंग फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दे आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. ये देखो यहाँ पे रेटिना के सामने ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ. ये कब सिचुएशन होगी? जब या तो आईबॉल बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, या आपके लेंस की जो पावर ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो बहुत ज्यादा स्फेरिकल हो गया है. ठीक है, एबनॉर्मली. तो ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. ठीक है, अब ठीक है, पैरेलल रेज जो आ रही हैं वो फॉल कर रही हैं रेटिना के ऊपर. अब क्या है, अब आप लेंस को कि आप रिफ्रैक्टिव पावर जो है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उसको तो रिड्यूस कर नहीं सकते हो. हाँ, ठीक है, या इसको खींच के डिस्टेंस को यहाँ तक ले आओ रेटिना को, ये भी नहीं कर सकते हो आप. हाँ, तो ऐसे सिनेरियो में देखो, ये अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को यू कैन नॉट सी. ठीक है,
नाइदर यू कैन चेंज द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हुई है, या आप रेटिना को खींच के इधर ले आओ, दोनों का काम नहीं हो सकते हैं। तो मायोपिक पर्सन को दूर की चीजें क्लियरली नजर नहीं आती हैं, ठीक है। हाइपरोपिक पर्सन जो है उसको आप अगर तो उसके कॉमन लेंस सही काम कर रहा है तो उसको दूर की चीजें नजर आएंगी, लेकिन उसको नजदीक की चीजें नजर नहीं आएंगी। और ये जो मायोपिक पर्सन है इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, क्योंकि इसको दूर की चीजें जो है ही इज अनेबल टू सी दूर डिस्टेंट इमेजेस, ठीक है। सो when the ciliary muscle is completely relaxed, ठीक है, the light rays coming from distant objects are focused in front of the retina। अच्छा, सिनेरियो क्या है कि सिलियरी मसल रिलैक्स है, यानी कि लेंस आपका फ्लैट है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो चीज लाइट आ रही है वो आपके रेटिना के आगे पड़ रही है। ये कंडीशन कब होगी? या तो आई बॉल बहुत लंबा हो गया है या उसकी रिफ्रैक्टिव पावर आपकी लेंस की बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। The image is formed in front of retina. Now, no mechanism exists by which the eye can decrease the strength of the lens. So less than that which exists lens when the ciliary muscle is completely relaxed, ठीक है। राइट, तो अब आपकी लेंस की तो स्ट्रेंथ आप नहीं कम कर सकते हो, ठीक है। सो अ मायोपिक पर्सन हैज नो मैकेनिज्म बाय विच टू फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट शार्पली ऑन द रेटिना, ठीक है। अब नियर ऑब्जेक्ट, in case of near objects, the person can use the mechanism of accommodation to keep the image focused clearly because the lens have a very good refractive power, ठीक है। अब नियर ऑब्जेक्ट्स का क्या है? नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए ये है कि लेंस जो है क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव पावर बहुत अच्छी है, तो वो जो है वो it will keep the near object very, it can focus the near object very clearly, ठीक है, because it has a good refractive power, ठीक है। सो ये आपका सिनेरियो है, ठीक है। यानी कि फार साइटेड पर्सन जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स तो देख सकता है विद द हेल्प ऑफ अकोमोडेशन, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता क्योंकि आपका लेंस ही बहुत वीक हुआ है। और जो मायोपिक पर्सन है उसको जो है आपको उसको दूर की चीजें नजर नहीं आएंगी, ठीक है, बिकॉज इमेज जो है वो आंखों के आगे पड़ रहा है, रेटिना के आगे पड़ रहा है, और लेंस की जितनी मैक्सिमम पावर है, ठीक है, आप मैक्सिमम लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नियर ऑब्जेक्ट जो है मायोपिक देख सकता है, ठीक है। तो दो कंडीशन, एक मायोपिया है और एक हाइपरोपिया। हाइपरोपिया इज कॉल्ड फार साइटेडनेस, दूर की चीजें नजर आती हैं। मायोपिया इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस, इसमें नजदीक की चीजें नजर आती हैं, दूर की नजर नहीं आएंगी, ठीक है। अब उसको करेक्ट कैसे करेंगे? अब जहां पे लेंस की जो है पावर जो है हाइपरोपिया है, जहाँ पे लेंस की पावर कम है, तो वहां पे आप उसको मोर एक उस बंदे को कन्वेक्स लेंस दोगे, उसके एन के दोगे जिसमें कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं, तो फिर क्या होगा कि आपका इमेज पीछे फॉल करने की बजाय आपका इमेज जो है वो फॉल करेगा ऑन द रेटिना, ठीक है। ये देखो हाइपरोपिया में इमेज पीछे पड़ रहा था, तो आपने उसको करेक्ट कैसे किया? आपने उसको एक पावरफुल लेंस दिया जिसकी वजह से उसने जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो वो देख ही रहा था विद द हेल्प ऑफ अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन, उसने आपके नियर ऑब्जेक्ट्स को भी हेल्प किया और फोकस जो है वो फॉल कर रहा है ऑन द रेटिना। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ मायोपिया में क्या हो रहा है? मायोपिया में आपका लेंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी रिफ्रैक्टिव एबिलिटी है, तो आपको फोकस जो है ना वो आपके इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पे फोकल पॉइंट है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। तो अब आप उसको क्या करोगे? अगर रिफ्रैक्टिव पावर बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे आप एक ये लगा दोगे कनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस लगा दो। कॉनकेव लेंस जो है ना वो डाइवर्ज करेगा रेस को, ठीक है, डाइवर्ज करेगा तो फोकल पॉइंट विल बी फॉर्म ऑन द रेटिना, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट जो होगी, मायोपिक को आप दोगे कॉनकेव लेंस और हाइपरोपिक को आप दोगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आगे बात समझ में? सो आप ये देखो कि ये देखो आई बॉल लंबा हो गया है, तो इसका इमेज जो है वो यहाँ पर पड़ रहा है, तो आप उसको सिलेंड्रिकल लेंस दोगे ताकि आपका इमेज जो है
डाइवर्ज हो रेज और आपका इमेज फॉल करे रेटिना के ऊपर, और यहाँ पे आपका इमेज पीछे पड़ रहा है, तो आप इसको कॉन्वेक्स लेंस दोगे हाइपरोपिया में, ताकि उसका इमेज रेटिना के ऊपर फॉल करे। ठीक है, ये आपकी ट्रीटमेंट है। Myopia, correction of myopia and hyperopia. If the refractive surfaces of the eye have too much refractive power, as in myopia, this excessive refractive power corrected by using a concave spherical lens, which will diverge the rays. ठीक है, माइनस डायोप्टर्स वाला दोगे। हाइपरोपिया में क्या है, अगर refractive surfaces of the eye are too weak, तो you will add refractive power by using a convex lens in front of the eye plus diopters वाला उसको लेंस लगाओगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया क्या है? लॉस ऑफ अकोमोडेशन बाय द लेंस। ठीक है, एज अ पर्सन गेट्स ओल्डर द लेंस ग्रोस लार्जर एंड थिकर एंड बिकम्स लेस इलास्टिक। ठीक है, ड्यू टू प्रोग्रेसिव डीनेचुरेशन ऑफ द लेंस प्रोटीन्स। सो लेंस जो है वो बड़ा भी हो जाता है, थिक भी हो जाता है, लेस इलास्टिक भी हो जाता है, और डीनेचुरेशन ऑफ लेंस प्रोटीन्स हो जाती है। द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू चेंज द शेप डिक्रीजेस विद एज। ठीक है, each eye remains focused permanently at an almost constant distance, depends on the physical characteristics of each person's eye. The eyes can no longer accommodate for both near and far vision. The power of accommodation जो है 20 जो होती है वो 40 to 45 to 50 years पे 2 डायोप्टर्स रह जाती है, और 70 years पे सिर्फ 0 डायोप्टर रह जाएगी, यानी accommodation बिल्कुल खत्म हो जाती है। 45 to 50 years पे 2 डायोप्टर्स हो जाती है, और 70 years की एज पे 0। और नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल कितनी होती है भाई? ट्वेंटी डायोप्टर्स। अच्छा जी, आप ट्रीट कैसे करेंगे प्रेस बायोपिया को? टू सी क्लियरली बोथ इन द डिस्टेंस एंड नियर बाय विजन। ओल्डर पर्सन को आप बायफोकल ग्लासेस लगाओगे। ठीक है, अपर सेगमेंट जो है होगा, आपने बायफोकल ग्लासेस देखी हुई ना आपके एल्डर्स, अब तो खैर नहीं पहन, सम पीपल दे वेयर ग्लासेस, तो बायफोकल होती हैं। ठीक है, ऊपर जो है वो आपका फार सीइंग के लिए होता है, और लोअर सेगमेंट जो है वो नियर सीइंग के लिए, रीडिंग के लिए होता है। ठीक है, या फिर वो लेंस ही रिप्लेस कर देते हैं, इंट्रा ऑकुलर सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रा ऑकुलर लेंस, ये आपके प्रेस बायोपिया की ट्रीटमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, एक और टर्म हम पढ़ते हैं एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म जो है इट इज आल्सो रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आई। दे आर डिफेक्ट्स इन द कर्वेचर ऑफ द लेंस और द कॉर्निया। कर्वेचर जो है लेंस का या कॉर्निया का डिफेक्टिव है। ठीक है, तो light entering the eye will not be focused at a single point on the retina, so thus it creates a blurred vision. In astigmatism, the curvature of the cornea is uneven, so light rays are unequally refracted. ठीक है, कॉर्निया या लेंस का अगर सरफेस अनइक्वल हो जाएगा तो लाइट रेज जो है वो इक्वली रिफ्रैक्ट नहीं होंगी, अनइक्वली रिफ्रैक्ट होंगी। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये आपको गाइटर में डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका लेट्स से लेंस है या कॉर्निया है। ठीक है, तो अब इसकी अनइवन सरफेसेस हैं। एक सरफेस है एसी, प्लेन एसी, ठीक है, और एक सरफेस है बीडी। एसी की रिफ्रैक्टिव पावर कम है और बीडी की रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, लेट्स से ये लेंस है या कॉर्निया, कोई चीज भी है, तो एक प्लेन की रिफ्रैक्टिव पावर कम होगी और एक प्लेन की रिफ्रैक्टिव पावर ज्यादा है। ठीक है, जिस प्लेन की रिफ्रैक्टिव पावर ज्यादा है, बीडी की रिफ्रैक्टिव पावर ज्यादा है, तो उसका फोकल पॉइंट जो है ना, जो लाइट वो पड़ेगा पीछे। ठीक है, जो ज्यादा रिफ्रैक्टिव पावर, सॉरी जिसकी रिफ्रैक्टिव पावर कम है, कम किसकी है? एसी की। एसी की रिफ्रैक्टिव पावर कम है तो उसका फोकल लाइन जो है पीछे गिरेगी जाके, और बीडी के ऊपर जब लाइट पड़ेगी आके तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर ज्यादा है तो उसकी फोकस आगे आएगा। तो जब कुछ लाइनें यहाँ बन रही हैं, कुछ फोकल पॉइंट यहाँ पड़ रहे हैं, कुछ फोकल पॉइंट यहाँ पड़ रहे हैं, तो आपको एक ब्लर्ड इमेज नजर आएगा। ठीक है, स्टिग्मेटिज्म टेस्ट करने के लिए एक बड़ा अच्छा उन्होंने चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप अपनी लेफ्ट आई क्लोज करो और चार्ट को देखोगे, ठीक है, तो और खास सेंटर को देखोगे, तो अगर तो आपको लाइनें अलग अलग नजर आएंगी तो समझो कि आपकी आंखें सही है, और अगर आपको लाइनें ब्लर नजर आएंगी तो उसका मतलब है
ये एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है। तो अगर आप सब के सब बाद में करके देखना कि आप बिल्कुल सेंटर में आप देखो इसको, ठीक है। और अगर आपको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, अगर आपको लगे कि ये जो किनारे पे लाइनें हैं, एक आंख बंद करके, ठीक है, और आपको लगे कि ये लाइनें आपको ब्लर नजर आ रही है बहुत देर सेंटर में देखने के बाद, तो आप समझो कि आपको एस्टिग्मेटिज्म है। और अगर आपको ब्लर नहीं नजर आए तो आपको एस्टिग्मेटिज्म नहीं है, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे करोगे? एक सफेरिकल लेंस से पहले आप ट्रायल एंड एरर से आप फोकस करोगे कि कौन सा सही एंगल है, उसके बाद आप इसमें एक सिलेंड्रिकल लेंस लगाओगे टू करेक्ट द रिमेनिंग एरर, ठीक है। कॉन्टेक्ट लेंसेज क्या होते हैं? ग्लास और प्लास्टिक के कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं दैट फिट अगेंस्ट द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। बहुत सारे आप बच्चे कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हो। दे आर हेल्ड इन प्लेस बाय अ थिन लेयर ऑफ टेयर फ्लूइड, ठीक है। आंखों में जो आंसू होते हैं ना, वो आपको आपके लेंस को चिपका देते हैं आपके कॉर्निया के साथ। The tears between the contact lens and the cornea have a refractive index almost equal to that of cornea, ठीक है। So the anterior surface of the cornea no longer plays significant role in eye's optical system. रोल फिर शुरू हो जाता है आपके लेंस का, ठीक है। इंस्टेड द आउटर सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस प्ले द मेजर रोल, ठीक है। कॉन्टैक्ट सिस्टम के लेंस के आपका आउटर सरफेस जो है दैट प्लेज अ रोल। कॉन्टैक्ट लेंस का फायदा क्या है? इंस्टेड ऑफ हैविंग ग्लासेस, तो इट इज यूज इन रिफ्रैक्टिव एरर्स कॉज्ड बाय ऑड शेप बल्जिंग कॉर्निया, केराटोकॉनस। कुछ लोगों में ना ऑड शेप बल्जिंग कॉर्निया होता है, उसे कहते हैं केराटोकॉनस। उसमें ये लेंसेज बहुत हेल्पफुल होते हैं। The lens turns with the eye and give a broader field of clear vision than the glasses, ठीक है। अब ग्लासेस तो आंखों के साथ नहीं घूमती ना, लेकिन अगर आप अपने आंखें घुमाओगी और साथ साथ लेंस भी घूमेंगे तो आपका ब्रॉडर क्लियर विजन होगा। The contact lenses has little effect on the size of the object the person sees through the lens, ठीक है। Whereas lenses placed 1 centimeter in front of the eye do affect the size of the image in addition to the करेक्टिंग फोकस, ठीक है। यानी कि अगर लेंस से आप देखो तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको सही नजर आएगा, लेकिन अगर आप ग्लासेस लगा के देखोगे तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फर्क नजर आएगा, ठीक है। ये एडवांटेजेस हैं आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज के। अच्छा, फिर एक और डिजीज है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। लेंस में के अंदर ओपेक एरियाज डेवलप हो जाते हैं। कॉमनली सीन आई एबनॉर्मलिटी दैट अकर्स इन ओल्डर पीपल, ठीक है। Cataract is a cloudy or opaque area or areas in the lens, ठीक है। Protein in some areas of the lens fibers become denatured and coagulate to form opaque areas. इसकी ट्रीटमेंट क्या है कैटरेक्ट की? Surgical removal of the lens. When the lens is removed, the eye loses a large portion of its refractive power. फिर क्या होगा? लेंस को रिमूव कर दिया, बंदा तो रिफ्रैक्टिव पावर कम हो गई, तो फिर क्या करेंगे? यू विल रिप्लेस इट विद द पावरफुल कन्वेक्स लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई। या तो उसको आंखों ऐनक लगा दोगे कन्वेक्स लेंस वाली, या आप एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करोगे इंट्राओक्युलर। ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर। अब मुझे बताओ कोई सवाल, कोई बात अगर नहीं समझ में आई है? अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म की, ठीक है, कल कर दूंगी करेक्शन। और कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछ लो मेरे से। दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बार बार इसलिए आपको समझाया है कि आपको ये बहुत पूछा जाएगा कि फार साइटेडनेस को फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं, नियर साइटेडनेस को नियर साइटेडनेस क्यों कैसे कहते हैं, इसको करेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी, कोई गड़बड़, प्लीज आस्क मी, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया है? भाग गए हैं कितने सारे बच्चे।